Hello everyone and welcome to the first lesson of our mini series course of making your first digital product in just 7 days so we can earn while we sleep. But before we start, I want to say something very honestly. Most people who start this journey feel exactly like we do at the moment. Thoda excited, thoda confused and very unsure if we are good enough to actually make something that someone is going to buy. I want this course to feel like you're sitting with a friend who's just one step ahead, because today is all about clarity, confidence, and understanding one simple truth, that you already know something that can help someone else. In other words, you already have the ability to make a digital product, you just don't realize it yet. तो अगर हम बहुत शुरू से शुरू करें कि digital products आखिर होते क्या हैं, तो सबसे easy definition ये हो सकती है कि something, anything, digital that you can create once and people can download or people can access again and again. So unlike physical products, हमें ना shipping की ज़रूरत है, ना packaging की, ना initial investment की, ना कुछ अपने पास जमा करके रखने की. हमें सिर्फ एक फाइल चाहिए जो हमने एक दफ़ा बनानी है and anyone can purchase it. इसकी examples में हमारे पास PDF गाइड्स हो सकती हैं, checklists, calendars, ideas, sheets, workbooks, templates. All of these are different forms of digital products that we can create and then people can buy from us. Let's now brainstorm some ideas कि हम अपने कौन से ऐसे ideas हैं जिन पे काम करके उनको actually products बना सकते हैं. तो यहाँ पर एक important term है problem. The simplest way to find your digital product idea is using this formula, which is find a small but specific problem and create a very specific targeted solution for it. ये फार्मूला फॉलो करते हुए हम दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी तरह का डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं and put it on sale so that somebody can buy it. The easiest way is this, ये सोचने के बजाय कि मुझे क्या बनाना है, अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूँ कि मेरे आसपास के लोगों में, मेरी कम्युनिटी में, मेरे फ्रेंड सर्कल में वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उसके जवाब में जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगा. A small solution to a small problem. लेकिन it has to be specific and it has to be targeted to a certain problem, to a certain group of people. We will talk about this later as well. कोई बहुत complicated challenge या बड़ा मसला होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक relatable struggle होनी चाहिए. कुछ examples देखते हैं. Now let's see, I cannot organize my week because let's say I'm busy or somebody is a mom, somebody runs a house or anything. तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देयर वीक. तो उनके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहें अगर हम, तो इट कैन बी अ वीकली प्लानर टेम्पलेट. इट कैन हैव फ्लेक्सिबल सेक्शंस जहाँ पे वो अपने सारे टू डूज लिख सकें, कुछ स्पेशल प्रायोरिटी सेक्शन, कुछ नोट्स, कुछ रिमाइंडर्स फॉर द लेटर मंथ और द लेटर वीक्स. इसी तरह से अगर एक प्रॉब्लम है कि आई वेस्ट टाइम इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, विच इज़ आई बिलीव इज़ अ कॉमन स्ट्रगल अमंग स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या हम एक स्टडी फोकस चेकलिस्ट बना सकते हैं. इफ़ यू नो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका SAT एग्ज़ाम अगले मंथ होने वाला है, कैन यू मेक अ स्टडी फोकस चेकलिस्ट फॉर देम सो दे कैन स्टे फोकस ऑन देयर वर्क, ऑन देयर एजुकेशन while not wasting time. Are you solving their problem? Then yes, that is a validated product idea. इसके अलावा we can see a lot of examples here in which we can easily get an idea कि products और problems का आपस में relation क्या है. आपने नोटिस किया होगा कि ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं. दे आर वेरी रिलेटेबल. देयर समथिंग वी कैन फेस ऑन अ डेली बेसिस, बट वी डू नॉट थिंक कि हमें इसके लिए कुछ किसी और की ज़िंदगी आसान करने के लिए कुछ बनाना चाहिए. लेकिन दिस इज़ द हार्ट ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट्स. हम एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं जो कि आइडिएशन से रिलेटेड है, जिससे हमारे रैंडम और रॉ आइडियाज़ स्ट्रक्चर्ड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे. उसके लिए वी नीड अ 5 प्रॉब्लम ब्रेनस्टॉर्म एक्सरसाइज, जिसमें हम 5 ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे अपने जो हमने अपनी ज़िंदगी में सॉल्व किए हों या बेहतर किए हों, क्योंकि आपका पास्ट सेल्फ ही आपका आइडियल कस्टमर होगा. उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं समथिंग यू लर्न, जैसे अगर आपने पिछले महीने वीडियो एडिटिंग सीखी है तो क्या अब आप किसी और को सिखा सकते हैं. समथिंग यू फिगर्ड आउट, जैसे मुझे पिछले साल पता लगा कि इंस्टाग्राम से यू कैन मेक योर ओन मनी, तो क्या मैं अब किसी और को ये सिखा सकती हूँ. समथिंग यू इम्प्रूव्ड, समथिंग पीपल आस्क यू अबाउट एंड समथिंग दैट सेव्स योर टाइम.
जैसे नोशन इज़ अ सॉफ्टवेयर, इज़ अ प्लेटफॉर्म, उसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम सेव होता है। तो क्या अब मैं यही चीज़ किसी और को सिखा सकती हूँ? The answer to each one of these things can become an individual digital product. And this is how we turn अपने tiny problems, किसी और के relatable tiny problems into streams of passive income. अब let's say कि हमारे दिमाग में एक idea तो आ गया है कि मैं इस प्रॉब्लम के या इस आइडिया के या इस टॉपिक के ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा आइडियल कस्टमर है कौन। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा सेक्शन है जो मैंने अपने सारे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, अपने सारे डिजिटल प्रोडक्ट जर्नी में इग्नोर किया था, और ये सोचकर कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सोच के कि ये शायद मेरे पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन अलॉन्ग द वे आई लर्न कि दिस इज़ downright one of the most important things you can do in any of your business ideas. अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहते हो, अगर आप फिज़िकल बिजनेस भी करना चाहते हो और आपको आपका आइडियल कस्टमर नहीं पता, तो बहुत सारी चीज़ें विल बी हैपनिंग विदाउट एनी फ्रूटफुल आउटकम। इसको हम दूसरे टर्म्स में नीश भी कह सकते हैं। और नीश का मतलब हमारे लिए सिंपली ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू फाइंड दैट प्रोडक्ट हेल्पफुल। हम बना किसके लिए रहे हैं, दैट्स इट। हम किसी इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम किसी बिग टारगेट मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक एक्चुअल रियल रिलेटेबल इंसान की बात करेंगे। क्योंकि लेट्स से कि मैंने अपना प्रोडक्ट आइडिया सोच लिया कि मैंने वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स बनाना है, तो वहाँ पर जाके मेरी रिसर्च ख़त्म नहीं हो जाएगी। आई विल आस्क माई सेल्फ हु एक्सपीरियंसेस द प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। वीडियो एडिटिंग का कोर्स शायद आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी एफ़र्ट, ये सब कुछ सेव करता है। तो वो आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? आपके वेस्टेज ऑफ टाइम की, आपके इनकम स्ट्रीम्स ना होने की, आपके डिजिटल मीडिया या ऑनलाइन वर्क ना होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो मुझे ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये कौन से यूज़र ग्रुप के लिए है। क्या मेरा कोर्स स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, न्यू फ्रीलांसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, बहुत बिज़ी लोगों को जो ज़िंदगी में शायद कोई नई हॉबी लाना चाहते हैं? क्योंकि आपका यूज़र ग्रुप, आपका आइडियल कस्टमर आपकी मार्केटिंग की सारी चीज़ को इंटायरली अफेक्ट करेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि पीपल डोंट नो हाउ टू प्लान देयर वीक। तो कस्टमर कौन हो गया? बिज़ी स्टूडेंट्स। और हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? वीकली प्लानर, जिनसे उनकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से पीपल ओवर स्पेंड, तो उसके लिए हमारा कस्टमर कौन हो गया? यंग अडल्ट्स, जिनके पास अपना बजटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए प्रोडक्ट क्या हो गया? एक बजटिंग शीट। व्हेन यू नो हु यू आर हेल्पिंग, योर प्रोडक्ट बिकम्स 10x बेटर। इसलिए कि आपकी मार्केटिंग बहुत इन्फॉर्म्ड होगी, और दूसरा ये कि आप जब भी उसमें कोई एडिट्स करोगे, जब भी उसके बारे में किसी से बात करोगे, आपके दिमाग में एक बहुत स्पेसिफिक बंदा होगा और उसकी हेल्प करने के लिए आपका सारा प्रोडक्ट अलाइन हो रहा होगा। अगर आपको अपना आइडियल कस्टमर नहीं मिल रहा, तो जैसे अभी आई मेंशन्ड लिटिल वाइल अर्लियर कि आपका ही पास्ट, हमारा बेहतरीन कस्टमर होता है। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग दीज कोर्सेज, आई वॉज नॉट doing this for a certain user group. I was not doing it for people on Instagram. I was only doing it क्योंकि जब मैंने ये सब कुछ शुरू किया था, तो मुझे गाइड करने के लिए, एक ही जगह पे सब कुछ बता देने के लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। कोई बड़ा बहन भाई या कज़न नहीं थे। एंड ऑल्सो जो चीज़ें मैंने यूट्यूब को ट्रस्ट करके सीखना चाही, मुझे वहाँ से वही हमारा रैंडम क्लिक बेट कंटेंट मिला, जिसके ज़रिए आप उसी लूप में फंस जाते हो और आप महीने महीने प्लेलिस्ट्स देखते रहते हो विदाउट एक्चुअली लर्निंग समथिंग। तो मेरे लिए, मेरे पास्ट सेल्फ के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने सॉल्यूशंस बनाए इन द फॉर्म ऑफ दीज कोर्सेज, कोचिंग, वर्कशॉप्स एट्सेट्रा। तो आपका पुराना सेल्फ भी, एंड इट कैन बी अ वीक ओल्डर, इट कैन बी अ मंथ ओल्डर, वो सेल्फ इज़ योर आइडियल कस्टमर। हम एक और चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा देखते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, you have to find your competition. This is also something I never did along the journey of my content creation, क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक नेगेटिव चीज़ है।
आप ख़ुद को किसी और से कंपेयर क्यों करोगे? आपके स्टाइल डिफरेंट है, आपके गिफ्ट्स एंड आपका नीश डिफरेंट है। आप ख़ुद को कंपेयर करके अपना मोरल क्यों ख़त्म करोगे? लेकिन एक्चुअली रियलिटी बहुत डिफरेंट है इस चीज़ से। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ये देखो कि जिस चीज़ पर आप आज काम कर रहे हो या करने लगे हो, उस पर आपसे पहले किस किस ने काम किया हुआ है और आप उनकी जर्नी से, उनके काम से क्या सीख कर अपना काम बेहतर कर सकते हो। Competitive analysis say, yes, I know beginners are very scared, including myself, but to make it easy, we're not doing any kind of research. We're only doing an observation. So step number 1 is just search your idea online. If I want to make a video editing course for, let's say, school-going students or new freelancers, then I'm simply going to go online into different platforms and search for my idea. कि मैं ये बनाना चाहती हूँ, तो मैं यही चीज़ सर्च करके देखती हूँ कि रिज़ल्ट्स कौन से आते हैं और उन रिज़ल्ट्स में मुझे कौन सा लगता है प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल है और मैं उससे क्या सीख सकती हूँ। ये चीज़ देख लेने के बाद स्टेप नंबर 2 इज़ टू आस्क योर सेल्फ वेरी सिंपल 3 क्वेश्चन। नंबर 1 इज़, आर पीपल सेलिंग समथिंग लाइक दिस? क्या मुझे वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज मिले जो दूसरे लोग सेल कर रहे हैं? वेल येस, मुझे मिले। आर पीपल बाइंग इट? क्या मुझे रिव्यूज़, कमेंट्स, लाइक्स, क्या मुझे अच्छा रिस्पांस देखने में मिला पब्लिक का? वेल येस, आई ऑल्सो ऑब्जर्व दैट। फिर नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मिसिंग? जब मैंने उनका कोर्स देखा और उसको इन्जॉय किया, उसको एक्सपीरियंस किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे क्या लगा कि क्या बेहतर किया जा सकता है। दीज आर 3 सिंपल क्वेश्चंस और इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इफ़ यू सी अदर पीपल आर सेलिंग समथिंग लाइक योर आइडिया, इट्स अ गुड साइन। इट्स नॉट अ साइन कि market is so saturated and all and everything. It means people are already paying for it. इसका मतलब है अगर आप कुछ ऐसा बना लो with a slightly different and added value, then there's a greater chance that people will actually buy it. And if nobody is selling something like that, जो आप बनाना चाहते हो और वैसा आपको कुछ इंटरनेट पे नहीं मिलता, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड नहीं है। हमें बहुत बहुत मुश्किल होगी लोगों में उसको अवेयरनेस बिठाने की एंड ऑल्सो फिर लोगों को कन्विंस करने की कि दे शुड बी बाइंग दिस प्रोडक्ट। हम यूनिक और बहुत नया और न्यू व्हीलर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, नॉट एज अ बिगिनर। हमारा गोल ये है कि हम एक बिगिनर फ्रेंडली, ईजी, चीप और टारगेटेड वर्जन बनाएं उस कोर्स का या उस प्रोडक्ट का जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। जैसे वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज तो ऑब्वियसली पूरे इंटरनेट पे भरे हुए हैं, तो अगर मैं बना लूँ उसको और वो जनरल हो, उसमें कोई ख़ास एस्पेक्ट ना डाला हो, तो फिर who is going to buy my course? Well, nobody, because I'm not giving them any kind of extra value. Either I can make it beginner friendly, very easier than whatever is present already in the market. I can price it really low as compared to the other courses, and I can create a targeted version. And by targeted I mean कि मैं उसको एम कर दूँ एक स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप या आइडियल कस्टमर की तरफ। अगर मैंने देखा कि वीडियो एडिटिंग के सारे कोर्सेज तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाए जा रहे हैं, तो आई स्टार्टेड मेकिंग वन एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स। या अगर मैंने देखा कि वीकली प्लानर्स तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं, सो आई स्टार्टेड मेकिंग वन entirely for, let's say, single mothers. So when you add a certain aspect to your product, it becomes more targeted, it becomes closer to its ideal customer. अब अगर हमने ये भी देख लिया कि हमने क्या बनाना है और किसके लिए बनाना है, लेकिन we just want to validate our idea before actually begin to creating it. वैलिडेशन का मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम पहले अपने तौर पे आइडिया को अच्छा मान के, आइडिया को सक्सेसफुल मान के उस पर काम करना शुरू कर दें और 1 हफ्ते 2 महीने के बाद हम देखें कि जब हमने उसको लॉन्च किया तो ये तो किसी को चाहिए ही नहीं है, इसकी तो हमारे पास कोई डिमांड या कोई ऑडियंस ही मौजूद नहीं है, तो हम वैलिडेट कैसे करेंगे एक आइडिया इवन बिफोर मेकिंग इट? तो स्टेप नंबर 1 इज़ टू शेयर योर आइडिया। आपके पास पूरा प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है टू टॉक अबाउट इट, एंड आई विल शेयर यू एन एग्जाम्पल। हमने जब लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर करना है तो हमने पूछना है कुछ इस तरह का कि वुड यू लाइक दिस, शुड आई मेक दिस, and would you be able to buy this, or will you be interested in this and once it's released? And here is a live example of this thing. These are the screenshots of my story reviews
and responses that I did for this particular course. मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि मेरे ऑडियंस में बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि आप गमरोड पे अर्न कैसे कर रही हैं, जबकि गमरोड पे तो पेपाल ऐड होता है और पाकिस्तान में पेपाल है ही नहीं। तो मैंने फिर अपनी स्टोरी पे पूछा कि अगर हम ये मसला सॉल्व करते हैं, आई कैन शो यू अ वे कि आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को बिना पेपाल से कनेक्ट किए पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन दिस, विल यू लाइक दिस? एंड दीज आर द रिस्पॉन्सेज. यू कैन लुक एट द नंबर ऑफ़ रिप्लाइज, यू कैन लुक एट द नंबर ऑफ़ रिएक्शंस टू द पोल कि कितने लोग आर इंटरेस्टेड इन द सोल्यूशन. और यहीं पर वो आइडिया वैलिडेट हो गया कि हाँ, ऐसा कुछ बनाया जाएगा. तो some amount of people, any number, it doesn't have to be in hundreds or thousands, it can be more than one, and it's a good idea to begin with. और स्टेप नंबर 2 उसी में पूरा कंप्लीट हो गया कि हमने रिएक्शंस नोट किए. अगर लोगों ने भी अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना शुरू किए, उनको वो बात रिलेटेबल लगी, उन्होंने उस पर येस कहा, then the idea is valid. लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है आप बहुत रिसर्च कर लेने के बाद जब आइडिया शेयर करो तो उस पर वो रिस्पांस आए ही ना जो आपको ऑलरेडी चाहिए था. आपने 1-2 दफ़ा शेयर करके देखा, लेकिन जो ऑडियंस आपके पास है वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रही. तो इट्स ओके, वी कैन ड्रॉप दैट एंड मूव ऑन टू अ नेक्स्ट आइडिया दैट विल बी वैलिडेटेड, विल बी रिलेटेबल टू द पीपल. और इसकी भी एक लाइव एग्जाम्पल ये है. कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्ट वर्क बनाया था जिसका मेरा बहुत दिल था कि मैं इसको एक डिजिटल आर्ट वर्क के तौर पे सेल आउट करूं, सो पीपल कैन डाउनलोड इट एंड पुट इट इन देयर फ्रेम्स और यूज़ इट एल्सवेयर. तो जब मैंने उसके बारे में क्वेश्चन लिखा इन अ वेरी जनरल कॉन्वर्सेशनल टोन कि अगर हम इसका आर्ट प्रिंट बनाते हैं तो विल यू गाइज बी इंटरेस्टेड, तो यू कैन लुक एट द नंबर ऑफ़ रिप्लाइज एंड द नंबर ऑफ़ रिएक्शंस कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर, विच मेक्स मी कम बैक टू द पॉइंट कि फिर दिस was something that I did not go further with. Obviously, I didn't want to make an entire page, an entire entry on my store for a thing that people did not want to buy. And I know there are reactions जो लोग ready भी हैं, लेकिन when I see it, the difference is okay. It just helped me make the decision कि मैं यही एनर्जी अगर एक किसी और चीज़ पर, किसी और आइडिया पर लगाती हूँ और उसमें मुझे 70% रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है बजाय व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ. और स्टेप नंबर 3 है कि हमने उस सारे को सिर्फ एक रिकैप देना है. अगर हमारे जैसे लोग ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अच्छी वैलिडेशन है. अगर लोग उस प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी आपके सर्कल में बात कर रहे हैं, जैसे लोग मुझे ऑलरेडी पूछ रहे थे कि आप कैसे ये कर रही हैं जबकि पेपाल तो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी वैलिडेशन है. और दूसरा ये कि अगर आपने ये प्रॉब्लम अपने लिए सॉल्व किया है तो वो भी एक बहुत रिलेटेबल और बहुत इनवर्ड ऑर्गेनिक वैलिडेशन है, क्योंकि दिस वाज समथिंग, पेपाल के बजाय पाकिस्तानी बैंक अकाउंट कनेक्ट करना और प्रोडक्ट्स का स्टोर बनाना वाज समथिंग दैट आई डिड फॉर माई सेल्फ एंड आई न्यू द स्ट्रगल. तो इसका मतलब है यहाँ से भी हमारा आइडिया टिक हो जाता है. इसका सिर्फ ये मतलब हुआ वैलिडेशन का, हमने जो सीखा कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसके लिए हमारे पास ऑडियंस है ही नहीं. Now this is the recap of lesson number 1, and in less than 20 minutes you guys now have learned what digital products actually are and how you can brainstorm ideas through problems rather than cool things, Instagram things, YouTube things. You have identified your ideal customer through questions, observations, etc. and you have done a very simple, straightforward competitor analysis. And you have learned कि अपने आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है even before launching it. लेकिन सिर्फ रिकैप पे हमारा लेसन ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि लेसन नंबर 2 आना है कल. तो तब तक you guys have time for this small amount of homework that I have कि हमने 5 ऐसे प्रॉब्लम्स लिखने हैं जो हमने सॉल्व किए या अंडरस्टैंड किए और फिर उन पे काम किए, और उन 5 प्रॉब्लम्स का हमने एक डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया लिखना है उनके सामने. So let's say your first problem is you don't have time for your hobbies, और उसका डिजिटल प्रोडक्ट बनता है एक टेम्पलेट और या अ टू डू लिस्ट डिज़ाइंड फॉर बिजी स्टूडेंट्स. तो इस तरह हम हर प्रॉब्लम का एक एक प्रोडक्ट आइडिया लिखते जाएंगे. उसमें से हम एक आइडिया पिक करेंगे अगली एक्सरसाइज करने के लिए, यानी नीचे वाले क्वेश्चंस करने के लिए, और उस एक आइडिया का ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे
कि ये किसके लिए है, who are we making this for. If we are making a video editing course, then who is going to use that information, use that material and share that one idea जो आपने अपने तौर पे choose किया है along with its digital product and along with its ideal customer in the WhatsApp group for feedback. उससे होगा क्या कि हम सब अकाउंटेबल रहेंगे कि हमने लेसन देख लिया है और हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और हमारा होमवर्क इज़ ऑन द वे. एंड ऑल्सो बिकॉज इट हेल्प्स कीप द मोमेंटम गोइंग ऑन. आज हमने ऑफिशियली वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है टूवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक अस मनी व्हाइल वी स्लीप. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने इस आइडिया को, एक वैलिडेटेड कन्फर्म्ड आइडिया को सेलेबल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. I'll see you in lesson 2. Till then, take care.